Hello students and very good morning to you all. This is Arvind Rai from LPM Public School which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur, and as you all know I am a subject teacher of social studies. Students, in this today's video we are going to start some new topics from new chapter, that is prejudice and discrimination. Prejudice and prejudice and discrimination. ठीक है? Before starting to this topic, I hope that you all are good at your homes and precautious against COVID-19, and you are also attached with your studies and preparing for your upcoming exams. Okay, that is going to be held in upcoming days, and I hope that in very upcoming days the schools will also be opened and will start some physical classes in this our class or school. So till then, please be attached with your revisional videos, books, and be prepared for your exams. Now come to the topic, that is prejudice and discrimination. Okay, अगर हम prejudice और discrimination की बात करें तो मतलब पक्षपात और भेदभाव. prejudice का मतलब हुआ पक्षपात और discrimination का मतलब हुआ भेदभाव. ठीक है? Now to make you understand, आपको ये टॉपिक समझाने के लिए one paragraph is being given on page number 225 in your book. Okay, just to explain you the two words, that is prejudice and discrimination. What it is given, let's see. Mansi's parents and grandparents are very unhappy. Her uncle, who lives in USA, had just informed that he will be marrying a girl from Africa who is his colleague. They have known each other for the past 4 years. African auntie Mansi was too excited, but she was surprised when her grandmother cried out, "Why an African girl? Anil could have married an Indian girl who stays in America. I am sure that girl is too cunning and selfish. How can her new auntie be bad and selfish just because she belongs to some other country?" Mansi wondered. Grandma has not even met her. Why is she being so unfair? Okay? ये कैसा केस है? मानसी एक लड़की है, ओके, और उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही उदास हैं, दुखी हैं, मतलब खुश नहीं हैं, और मानसी के जो अंकल हैं वो कंफर्म करते हैं कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो अफ्रीका की निवासी है. ओके, तो ये बात जब उसकी ग्रैंडमदर को पता चलती है तो वो बहुत ही अनहैप्पी होती हैं, ठीक है, बहुत ही दुखी होती हैं, और वो अपने सोच के आधार पे, अपने खुद के सोच के आधार पे ही एज्यूम कर लेती हैं उस होने वाली मानसी के नई आंटी के बारे में कि वो बहुत ही कनिंग और सेल्फिश होगी, मतलब बहुत ही चालाक और स्वार्थी होगी. तो ये बात सुनकर मानसी जो बहुत ही एक्साइटेड रहती है ये सुन के कि मेरी नई आंटी जो है वो अफ्रीकन होंगी, लेकिन उसकी ग्रैंडमदर जो है वो अनहैप्पी हैं सिर्फ इस बात से, अपने सिर्फ एक इमेज के आधार पे, अपनी सोच के आधार पे, कि अफ्रीका की जो लड़कियां हैं वो कनिंग और सेल्फिश होती है, मतलब चालाक और स्वार्थी होती है. ये बात मानसी को समझ में नहीं आती कि कैसे ग्रैंडमा ने आंटी को देखा भी नहीं, उनसे मिला भी नहीं, और उनको कैसे इस तरह से इल्जाम लगा सकती. हाउ शी कैन say that new auntie is cunning and selfish. So now I think that you must have understood the meaning of prejudice and discrimination. Now let's come to the paragraph, that is first paragraph is prejudice. Okay, first paragraph is prejudice, मतलब पक्षपात. ओके,
Like Mansi, have you also faced similar situations when people have expressed negative opinion about other people, places or things based on certain preconceived notions? Any unfavorable opinion that is formed without knowing the actual facts is called a prejudice. Prejudice affects our behavior towards a person. Based on a prejudice, we may become unnecessarily unfair and rude to somebody. This unfair treatment of people on the basis of prejudice is called discrimination. ठीक है, यहाँ पर इस पैराग्राफ का कहने का मतलब है कि क्या कभी आप ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहाँ पर आपसे बात करने वाला इंसान किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में या किसी चीज के बारे में अपनी सोच के आधार पर अब उसके प्रति गलत धारणाएं रखता हो, गलत सोच रखता हो, अपने सिर्फ ओपिनियन के आधार पर, सिर्फ अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर किसी दूसरे के लिए गलत नजरिया रखना या गलत पॉइंट रखना अपने दिमाग में, ये प्रेजुडिस होता है। मतलब अपनी सोच के आधार पर ही उसके लिए कुछ भी सोच लेना कि वो ऐसा है, वो वैसा है, ये जगह ऐसी है, वो खराब है, वो अच्छी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, और अपनी उस सोच के आधार पे हम उस इंसान के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। इनकेस अगर हमारी सोच में वो इंसान अच्छा होगा तो हम उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, हमारी सोच में अगर वो बुरा होगा तो उसके साथ हम बुरा बर्ताव करेंगे। सो दिस टोटली इट इज डिपेंडिंग ऑन आवर इनर थॉट्स, हमारे खुद के थॉट्स पे डिपेंड कर रहा है। किसी के बारे में हम जिससे मिले नहीं, उस जगह को देखे नहीं, उसके बारे में हम पहले ही अपनी सोच के आधार पर ये धारणा अपना लेते हैं कि ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा। तो ये तो हो गया प्रेजुडिस कि अपनी सोच के आधार पर किसी के बारे में भी कुछ भी सोच लेना और उसी सोच के आधार पर उसके साथ गलत या सही बिहेव करना। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। सो नाउ आई थिंक दैट यू ऑल आर मस्ट क्लियर विद द टॉपिक प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। Look at the following statements. People in the cities lead a very comfortable life. They are lazy and do not want to work hard. People in the villages are superstitious and backward. They are against any kind of development. All uneducated people are rude. We should not mix with people who are very different from us. ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं आपकी किताब में। पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो शहर के लोग होते हैं वो बहुत ही आरामदायक जीवन जीते हैं, बहुत ही लेजी होते हैं और हार्ड वर्क करना नहीं चाहते हैं। तो ये क्या है? ये प्रेजुडिस है, मतलब हम अपनी सोच पे वहां के निवासियों के बारे में धारणा रखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? पीपल इन द विलेजेस आर सुपरस्टिशियस एंड बैकवर्ड, दे आर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट। जो गांव के लोग होते हैं वो अंधविश्वासी होते हैं और किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ होते हैं, किसी भी कोई भी डेवलपमेंट को नहीं चाहते अपने परिवेश में, अपने समाज में, अपने गांव में। तो ये क्या है? ये भी हमारी खुद की धारणा है गांव के लोगों के प्रति, जो सही नहीं है। थर्ड पॉइंट इज ऑल अनएजुकेटेड पीपल आर रूड। जितने भी अनपढ़ लोग होते हैं वो रूड बिहेवियर वाले होते हैं, मतलब उनका बिहेवियर जो होता है वो सही नहीं होता, विनम्र नहीं होता, कठोर व्यवहार के होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज वी शुड नॉट मिक्स विद पीपल। नाउ सी द फोर्थ पॉइंट, दैट इज we should not mix with people who are very different from us. हमें ऐसे लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए जो हमसे पूरी तरह से दूसरी परिस्थिति से आते हैं या अलग परिस्थिति से आते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स क्या दर्शाती हैं कि हमारी जो मानसिक सोच है किसी भी चीज के प्रति, हम उसके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, किसी के प्रति जो हमारी धारणा है वो क्या है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स प्रेजुडिस के हैं, ठीक है, पक्षपात के। After that, the above statements are examples of prejudice. Sometimes our prejudices stem from one particular incident on person and we develop unfounded negative views about people. Prejudice is a very unhealthy attitude. We should not get rid of all kinds of prejudice and try to judge people only after interacting with them personally and positively. यहाँ पर यह कहा गया है कि चारों स्टेटमेंट जो अभी मैंने पढ़ा वो क्या है कि एक तरह का प्रेजुडिस है, एक तरह का पक्षपात है। हम किसी के प्रति अपनी सोच के आधार पर उसका एक चरित्र निर्माण कर लेते हैं अपने दिमाग में, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग दैट पर्टिकुलर पीपल। हम भेदभाव करते हैं ऐसे लोगों के साथ
मतलब जिनका चरित्र हमारे दिमाग में अच्छा है उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, और जिनके बारे में हमने पहले से ही सोच रखा है कि ये गलत इंसान या गलत जगह है तो उसके साथ हम गलत बर्ताव करेंगे। तो ये हो गया प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रेजुडिस जो होता है वो बहुत ही अनहेल्दी एटीट्यूड होता है, बहुत ही अनहेल्दी रवैया होता है प्रेजुडिस किसी के प्रति, जो नहीं होना चाहिए। ओके, we should get rid of all kinds of prejudices and try to judge people only after interacting with them personally and positively। प्रेजुडिस को बिल्कुल भी पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए और किसी के प्रति तभी कोई धारणा अपने दिमाग में अपनानी चाहिए जब तक कि हम उससे पर्सनली मिले ना हो या उससे पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से जब तक उससे हम इंटरेक्ट ना हुए हो, जब से उससे कोई बातचीत ना हुई हो। बिना इसके हमें उसके प्रति कोई भी धारणा अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज काइंड्स ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस कितने तरह की होती है? ओके, सेकेंड टॉपिक इज काइंड्स ऑफ प्रेजुडिस। ओके, फर्स्ट वन इज जेंडर। अगर हम काइंड्स ऑफ प्रेजुडिस की बात करें कि कितने तरह की पक्षपात होती हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा? जेंडर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? रिलीजियस। ठीक है, उसके बाद है रेस, रीजन और कास्ट। रेस, रीजन और कास्ट। उसके बाद है स्टीरियोटाइप्स। ओके, उसके बाद है स्टीरियोटाइप्स। ओके, so these are the types of, or we can say kinds of prejudice. First one is gender, second one is religious, third one is race, region or caste. After that stereotypes. Okay, so we are having four kinds of prejudice. First we are going to discuss, that is gender. Women face a lot of prejudice at home and sometimes even at the workplace. On the basis of such prejudice, they are subjected to discrimination. Even today, in many parts of the world, women are not treated as at par the men. अगर हम जेंडर की बात करें, अगर लिंग के आधार पर पक्षपात की बात करें या भेदभाव की बात करें, तो महिलाओं के साथ आज के समय में भी, इन मॉडर्न एरा, आज के समय भी महिलाओं के साथ बहुत ही व्यापक तरीके से पक्षपात और भेदभाव होता है। ठीक है, चाहे वो घर पे हो या वर्क प्लेस पे हो या कहीं पे भी हो। जितनी जो सोच हमारी सोसाइटी में मर्दों के प्रति है, वैसी सोच महिलाओं के प्रति नहीं रखी जाती है। उनके साथ पक्षपात किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ओके, और अपनी सोच के आधार पर ही महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। ठीक है, इन मेनी प्लेसेस दे आर स्टिल कंसिडर्ड solely as homemakers and are denied right to education। आज भी अधिकतर जगहों पर उनको एक होम मेकर के तौर पे, एक गृहिणी के रूप में ही देखा जाता है, जो एक घर को ही चला सकती है, ऐसा माना जाता है, ये सोच रखी जाती है। और दे आर डिनाइड राइट टू एजुकेशन, मतलब उनको पढ़ाई से दूर रखा जाता है, एजुकेशन से दूर रखा जाता है। इन सम प्लेसेस दे आर रिजिड रूल्स ऑन व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू, severe restrictions on the activities that women can do even today, they are not allowed to go out to the house or mix with people freely. Very often employed women get paid much less than their male counterparts for the same amount of work done। अगर हम लैंगिक भेदभाव के बारे में बात करें, पक्षपात के बारे में बात करें, तो महिलाओं के साथ बहुत ही व्यापक स्तर पर भेदभाव या पक्षपात होता है। ठीक है, ऐसी धारणाएं बना ली गई हैं कि जो महिलाएं होती हैं, द वुमेन्स आर ओनली होम मेकर्स, दे कैन डू ओनली होम रिलेटेड वर्क्स,
और अगर उनको कहीं जॉब दिया भी जाता है तो उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं, जो मेल कलीग्स हैं, उनके कंपैरेटिवली जो सैलरी होती है वो बहुत ही कम होती है। ओके, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रेजुडिस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सेकेंड इज रिलीजियस। Sometimes people belonging to a particular religion consider others to be inferior. They try to impose their thoughts and views on them. This is called religious prejudice. This often leads to violence and extreme hatred. Okay? अगर हम धार्मिक प्रेजुडिस की बात करें, रिलीजियस प्रेजुडिस की बात करें, तो कुछ धर्म के लोग, किसी विशेष धर्म के लोग अपने धर्म को सर्वोच्च मानते हैं, ठीक है, अपने धर्म को महान मानते हैं और अपने जो थॉट्स होते हैं, जो अपने आइडियाज होते हैं, उनके जो रिचुअल्स होते हैं, जो उनका कल्चर होता है, वो दूसरों के ऊपर भी लागू करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रेजुडिस होता है, इस तरह की जो धारणा होती है, वो रिलीजियस प्रेजुडिस के तहत आती है। उसके बाद है रेस, रीजन एंड कास्ट, दैट इज थर्ड पॉइंट। दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, जेंडर और रिलीजियस प्रेजुडिस। उसके बाद हम बात करेंगे रेस, रीजन और कास्ट के बारे में। ठीक है, रेस prejudices based on region, race and caste etc. are deep rooted. People of the so called superior caste consider people belonging to the other classes inferior to them. Such an attitude leads to a lot of discrimination. The unprivileged class is not allowed to mix up with the so called superior class. An extreme form of discrimination is untouchability. Okay? अगर हम रेस के आधार पर, रीजन के आधार पर या कास्ट के आधार पर प्रेजुडिस की बात करें, पक्षपात की बात करें, भेदभाव की बात करें, तो ये हमारे समाज में बहुत ही डीप रूटेड है। डीप रूटेड का मतलब कि बहुत नीचे तक, बहुत एक कह सकते हैं कि जो हमारी समाज की जो जड़ है, जो नींव है, वहां तक ये जो प्रॉब्लम है वो घुसी हुई है। रेस, रेस का मतलब होता है कि कौन किस कलर का है। ठीक है, अगर हम गोरे कालों के आधार पर बात करें तो इसके आधार पे हम पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं। ठीक है, अगर हम जात के आधार पर बात करें कि ये निम्न जाति का है, ये उच्च जाति का है, तो इसके आधार पर भी भेदभाव होता है। और रीजन के आधार पर अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्रवाद की जो समस्या है हमारे देश में, वो बहुत ही व्यापक स्तर पर है। तो ये जो तीन प्रमुख समस्याएं हैं प्रेजुडिस के लिए, ये बहुत ही व्यापक है, बहुत ही डीप रूटेड है। ओके, सो this all comes under race, region and caste prejudice. Okay? इस तरह के पक्षपात जो होती है वो रेस, कास्ट और रीजन के तहत आती है, जिसमें इन तरह का पक्षपात होता है, अपनी धारणाएं व्याप्त होती हैं कि इस जाति का है तो ये निम्न सोच का होगा, या पढ़ लिख नहीं सकता, या ये काम नहीं कर सकता, या उस जाति का है तो ये अच्छा काम कर सकता है। तो ये सारी जो धारणाएं हैं, ये हमारी खुद की बनाई हुई धारणाएं हैं और इसी आधार पे हम उनके साथ भेदभाव करते हैं। ओके, आफ्टर दैट, और इसका जो सबसे बैड इंपैक्ट होता है वो होता है अनटचेबिलिटी का, जिसे हम छुआछूत कहते हैं। ओके, हमारे समाज में अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो पहले के समय में बहुत ज्यादा थी, अभी कुछ हद तक कम है, लेकिन अभी भी जो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे अभी भी ये सारी समस्याएं मौजूद हैं। तो हमें जरूरत है कि इन सारी समस्याओं को अपनी सोच के आधार पे, अपनी शिक्षा के आधार पे इन सभी समस्याओं को दूर करें और राष्ट्र हित के बारे में सोचें। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टीरियोटाइप्स। Sometimes we assign some qualities to a group of people, thereby forming a particular image of them. This image or belief about a person or a group of people based on the idea that everyone in that particular group will look or act in the same way is called stereotype. Let us look at some examples of stereotyping. Okay? Stereotype का मतलब होता है कि किसी के प्रति अपनी धारणा बना लेना कि लड़का है तो क्रिकेट खेल सकता है, लड़की है तो वो गुड़िया के साथ खेलेगी, टॉयज के साथ खेलेगी, खिलौने के साथ खेलेगी, बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकती। तो इस तरह की जो सोच होती है वो स्टीरियोटाइप्स में आती है। ओके, इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? लिटिल रोहन फेल डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग।
His mother picked him up and consoled him by saying that boys don't cry. ठीक है, छोटा बच्चा एक रोहन है जो गिर जाता है, उसको उसकी माँ उठाते हुए कहती है कि लड़के जो हैं वो रोते नहीं है। तो ये क्या है? ये स्टीरियोटाइप्स है, ये एक सोच बनी हुई है, हमारी मानसिकता सेट है किसी चीज के प्रति, हमारा नजरिया जो सेट है किसी एस्पेक्ट के प्रति, एक पर्टिकुलर चीज के प्रति, चाहे वो जाति हो, चाहे कलर हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई इंसान हो, हमारी जो नजरिया, हमारी जो सोच है वो फिक्स है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिखाया गया है वो स्टीरियोटाइप का सोच है कि लड़के रोते नहीं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज ऋषि वॉन्ट्स टू लर्न भरतनाट्यम along with his sister but his father disagrees. ओके, एक लड़का है ऋषि, वो अपनी बहन के साथ भरतनाट्यम डांस सीखना चाहता है, मगर उसके फादर जो है वो डिसएग्री होते हैं। उनकी ये सोच है कि लड़कियां ही डांस सीखती हैं, लड़के डांस नहीं कर सकते। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स। ओके, नाउ आई होप दैट यू ऑल हैव मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। पक्षपात और भेदभाव में अंतर क्या होता है ये आप भली भांति समझ गए होंगे। और some other topics, that is for example children who are special, discrimination and inequality, equality in the constitution. These 4 topics we are going to discuss in our next video. Till then please be attached with your studies and go to the topics what we had discussed in this video. Thank you so much.